Good morning, Which ma'am. is, ma'am? Dr. Kumar is here, na? I think so. Let me see. Joya is here. Jaswinder is here. Who else is there? No, I don't see Dr. Kumar, but I heard it was like I her heard her voice. voice. I Yeah, heard her voice. Yeah. that's what I also thought. Wait. Hi guys, this is Purnima here. Pune. Okay, Purnima, you sounded so much like Dr. Kumar. Actually, you Ah. sounded like. Yeah, you sounded so much like Dr. Kumar, and I was just wondering. I can't see her name, but then yeah, probably it's Dr. Kumar. Yeah, that's what I also thought. कि मुझे नाम तो नहीं दिख रहा उनका. Yeah. I mean, she sounded just like Purnima. Yeah. I sent Dr. Kumar a message, Abhi. Yeah. In the name Ma'am. of Sanskriti, when I'm trying to change. Actually, Dr. Oh, Kumar acha, has you are- gone to university for a meeting. Okay. Yeah, अच्छा हाँ आज तो court meeting थी. Right. काफी There is वॉइस a- ब्रेक कर रही है, पता है? I could have asked you. I went to the college for some NCC work and she's not there at all. I went and now leaving. So you are Sanskriti Gupta, not Purnima. Yeah, here I'm trying to change it. I'm not able to. Actually, my niece must have used sometime this WebEx Okay. from हाँ, my हाँ. phone, and I. उस पे name हाँ, change नहीं कर हो. दो. Name change कर दो. How to do it? I'm not able to. नहीं कुछ नहीं वापस जाओ उस पे मीटिंग का जब वो आएगा ये करके हाँ. उस पे आ जाएगा नेम तो नेम पे संस्कृति गुप्ता को डिलीट करके राइट योर नेम. Okay. I'll do. Otherwise, in the minutes, just to check the audio I'm speaking, only to check. I'm thinking that Dr. Rekha, Miss Kamla Bhasin has just joined. Okay. Yes. Yeah, she has joined. Yeah. Good morning, Miss Bhasin. Namaste. I'm Dr. Rekha Navneet and a hearty welcome to you, ma'am. It's really an honor to have a person of your stature speaking to us and to our students. I'm sure everybody is going to get privileged. I'll request Alvia to do the formal introduction. But before that, ma'am, am I audible and are you? You're audible, Rekha. I'm Kamla, audible, ma'am, you are not audible. You have to unmute your device. Now, Audible, ma'am. Rekha जी, आप सुन सकते Yes, हैं? we. हाँ जी, Yes, yes, we ma'am, can I hear can you. hear you now. I can hear you Good now. morning. मैंने कहा we can hear you. मैं एक दिन आपके पास आऊंगी, आप मुझे समझाना तो सही कि मैंने क्या कौन सी एमिनेंस है मेरी, मुझे थोड़ी मुझे समझ में नहीं आता. मैम आप बहुत हम्बल है इस मामले में, but we all know about it. Yes, I can only say that you are being very humble. Yeah. And Alvi, I request you to do the formal introduction. Yes, ma'am. Am I audible? Hello. Yes, Alvia, you are audible. Yes. अभी तो टाइम नहीं हुआ मैम. मैम 1 मिनट रहता है. अभी 1 मिनट रहता है उसको. Correct. We should follow the. We don't want to miss like a single minute also, you know. No. बस चालू लोग हैं, चालू. I can see. चालू. गार्गी कॉलेज वेरी चालू. Yes, मैम गार्गी है ना. गार्गी नाम ही ऐसा है फिलोसोफर का. I tell you, बहुत चालू हो हमारा तो. कचूमर निकाल के फेंक दोगे. नहीं मैम ऐसा नहीं. All right. Should I start? 10:30 हो गए अब. हाँ start कर. Good morning to everybody present here. I would like to welcome you all for this talk by Ms. Kamla Bhasin on patriarchy and body shaming.
Ms. Kamla Bhasin, since 1970, has been actively engaged with issues related to development, gender, education, media, and others. Currently, she works with Sangat, a feminist network, as an advisor, as well as Jagori, a women's resource and training center. She is the South Asia coordinator of 1 Billion Rising, a global campaign to end violence against women and girls, co-chair of the worldwide network for peace women across the globe, and member of South Asians for Human Rights. Prior to this, she has worked with Food and Agriculture Organization of the United Nations for 27 years. Ms. Kamla Bhasin is deeply engaged with issues related to gender, patriarchy, men and masculinities, feminism, sustainable livelihoods, peace, identity politics, militarization, human rights, and democracy. She seeks to explore and articulate connections between these issues and to promote synergies between different movements. Her main work has been at the South Asian level, which includes capacity building of the South Asian and other young activists, networking amongst civil society organizations in South Asia and elsewhere, and organizing campaigns on different issues. She has also been conducting gender sensitization workshops for senior leaders and managers of NGOs, government officials, police personnel, and members of parliament in various South Asian countries. Ms. Bhasin has written and spoken extensively on patriarchy, women empowerment, participatory and sustainable development, participatory training, media, and communication. Most of her books are written for activists and development workers. She has also written a large number of songs and slogans for women's movements, books for children, and has created many posters and banners for various people's movement. She is committed to the creation of a peaceful, democratic, and pluralist South Asia. Ma'am, you have been an inspiration for all of us here, and it is an honor to have you here. I now request Dr. Rekha Navneet to kindly proceed. Thank you. Thank you, Alvia, for that brief and succinct introduction. I would now just request Ms. Bhasin to give her talk. We are all eagerly waiting for it. Thank you, ma'am. So, equality, Zindabad, Indian Constitution, Zindabad. I'm always happy to come to Gargi College because you are my neighbor. I live across the road from you in Anandalok. Friends, since we are meeting in the month of March, I have to mention the International Women's Day, my most favorite Tyohar, festival. A festival which is not related to any particular religion, any country, any community. A festival which is global. A festival which talks of equality between women, men, and other genders. So on this day, I express my deepest gratitude to our foremothers and forefathers who struggled for our equality, empowerment, because of whom there are colleges like the Gargi, Kamla Nehru College, because of whom there are young women and transgender people sitting here. It is on the shoulders of people who have worked for us earlier that you and I stand. So let's think, are we also going to do something which may make life easier for people who come after us? So, International Women's Day Zindabad, International Feminist Solidarity Zindabad, may it always continue, and may the world be equal, not just for women, men, transgenders, but for everybody. तो दोस्तों, जो टॉपिक मुझे दिया है वो है पेट्रियार्की एंड बॉडी शेमिंग. I have never spoken on this topic before, and that's why I accepted it.
because I like to learn new things. I like to take challenges. So thank you very much for educating me and making me think systematically a little bit about body and body shaming. So friends, we are talking about patriarchy and body shaming, but we could also be talking about race and body shaming. Blacks and whites. We could be talking about caste and body shaming. Class. Caste में तो हम पूरे इंसानों को अनटचेबल बना देते हैं. उनकी बॉडी शेमिंग तो ऐसी होती है. Their existence ऐसी है. So any unjust system believes in shaming others and controlling them. So, but since we are focusing on patriarchy and body shaming, मैं इस पर बोलती हूँ. But I want to begin with something else. दोस्तों, when we talk of violence against women, we keep talking about those who are victimized. We keep giving numbers. इतनों के रेप हो गए, इतनों को घर में मार पड़ी, इतनों को मेट्रो में छेड़ा. Don't you think it's time to think about people who do this rather than people to whom it is done? Don't you think it's time to talk about a man raped a woman rather than going on saying a woman was raped? अरे क्या भूत ने रेप किया था उसको? उनकी बात क्यों नहीं करते जो हिंसा करते हैं? कब तक उनके लिए रोएंगे जो विक्टिम्स हैं? क्या सिर्फ विक्टिम की बात करते हुए क्या हम बदल सकेंगे कुछ? मर्दों को बदला जा सकता है, और वो मर्द चाइना से नहीं आए, चांद से नहीं उतरे. मेरे और आपके घर के अंदर से आते हैं ये मर्द. The victimizer is not outside. They are inside our families. And so now I come to body shaming. I would like to begin with, about not just the body shamed, but the body shamers. And my first question is to myself and to all of you: have I ever shamed anyone in the college? Have I shamed when I was a child and another child who was probably handicapped or probably had polio? So instead of going on looking at other people as bad, let me first look at myself and say, have I done it to others? Because shaming anybody for anything is terrible, friends. Shaming for money, shaming for body, shaming for accent, shaming for marks, shaming only shameful people, only horrible people, in my opinion, can shame others. So shaming is terrible, whatever kind of shaming it be. And the first person I ask is, have I shamed anyone? And the next question I want to ask is, was there body shaming in my family? Was anyone in the family shamed by anyone else? And I was thinking about it. And I remember we were 3 sisters. One of them, according to the Punjabi society, वो सांवली थी. उसका रंग थोड़ा सांवला था. And my God, I think that sister of mine never heard the end of her सांवला रंग. सांवला तो वो कहते थे जो प्यार करते थे उसको. बाकी लोग तो काली तक कहते थे. तो अगर हमारे घरों में ये हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता.
फिनिश हो जाता है, और हमारे अपने घर वाले, परिवार वाले करते हैं। तो I think we need to begin with ourselves. And now let's talk of patriarchy and body. Shaming पे बाद में आएंगे. Patriarchy and body. I think body shaming is more when we give too much importance to body. अगर body ही सब कुछ हो तो body shaming हो सकती है. अगर बॉडी को हम इतनी इंपॉर्टेंस न दें तो बॉडी शेमिंग हो ही नहीं सकती. तो माय फर्स्ट थिंग इज, हम क्यों इन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि बॉडी शेमिंग बुरा है. मगर पेट्रियार्की में बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती, दोनों की बॉडीज को, औरत की को भी, मर्द की को भी. बट मर्द की बॉडी को पावर देने के लिए इंपॉर्टेंस दी जाती है. उसको लंबा होना चाहिए, उसको ऊंचा होना चाहिए, उसकी मसल्स होनी चाहिए, उसको एकदम तेज भागने वाला होना चाहिए. You make his body strong, supple, able. और लड़की की बॉडी को केवल प्रिट्टी होना चाहिए. आपको पता है कि पेट्रियार्की बाइनरीज में विश्वास करती है. बाइनरी, दो अलग अलग चीजें, ये औरत ये मर्द, बीच में कुछ नहीं, ये औरत ये मर्द. और पेट्रियार्की कहती है कि औरत बॉडी है, मर्द माइंड है. बॉडी एंड माइंड. औरत नेचर का हिस्सा है, नेचर है. मर्द कल्चर है, सिविलाइज्ड है. चूंकि औरत बॉडी है, माइंड नहीं है, औरत ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो खुद सोचती नहीं है, जो खुद कुछ कर नहीं सकती. सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता. Who can take decisions, who can act, who can order, who can question. Objects take orders. तो पेट्रियार्की ये बाइनरीज करती है. तो पेट्रियार्की कहती है कि हम सिर्फ बॉडी हैं, और फिर पेट्रियार्की हमें डिफाइन करके बताती है कि कौन सी बॉडी प्रिट्टी है और कौन सी नॉट प्रिट्टी है. एंड दैट्स हाउ वी आर ब्रॉट अप. हमारे कपड़े फ्रिल वाले, प्रिट्टी, रंगीन, फूलों वाले, मगर हमारा रास्ता रोकने वाले. एक बड़ी सी फ्रॉक जो मुझे पेड़ पे नहीं चढ़ने देती, एक बड़ा सा दुपट्टा जो मेरी साइकिल की चेन में फंस जाता है, मेरे जूते प्रिट्टी, कलरफुल, हील वाले जो मुझे चलने नहीं देते. जूता हम पहनते हैं स्पीड और प्रोटेक्शन के लिए. मेरा जूता ना स्पीड देता है, वो स्पीड ब्रेकर है, ना प्रोटेक्शन देता है. मेरे बाल 2 घंटे लगते हैं उनको धोने में, संभालने में, और फिर कभी दाल में पड़ रहे हैं, तो कभी सब्जी में से निकल रहे हैं, तो कभी रोटी में से निकल रहे हैं, और कभी नालियों में गुच्छे पड़े हैं उनके, और 2-2 घंटे लगते हैं जुल्फे संभालने में. This prettiness taking away my strength, my energy, my freedom. Pretty. And then Aishwarya Rai will define and tell Kamala Bhasin what is beauty. Although that poor woman herself was defined by some cosmetic company and said, you Aishwarya are pretty. देख तेरी breast बिल्कुल सही है, तेरी कमर देख, तेरी नाक देख. And then Kamala Bhasin is supposed to be like her. How many of us sitting here can be like anybody else? We are unique. Each one of us is unique. And nobody can tell me I am pretty or I am not pretty. So, dosto, this is what patriarchy does to us. It first tells us women are only bodies.
बस गोरा रंग होना चाहिए, ब्रेस्ट का साइज ये होना चाहिए, और ये ब्रेस्ट और ये गोरा रंग भी हमारे लिए नहीं है, इसके मालिक दूसरे बनेंगे जिनकी हम प्रॉपर्टी होंगे। Women's bodies are colonies of men and society. A German feminist scholar had said, women are the last colony. इंडिया कॉलोनी था, आजाद हो गया, औरत अभी भी कॉलोनी है, किसी ना किसी मर्द की, उसका जिस्म कॉलोनी है, उससे काम लिया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है सेक्स के लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए, पब्लिक वर्क के लिए। इसी चीज पर थोड़ा सा और सोचिए कि पोएट्री में, खासतौर से उर्दू पोएट्री में, औरत हुस्न है। इसका मतलब सिर्फ सुंदरी ही हुस्न है, तो इसका मतलब पोएट्री तो सिर्फ 1% औरतों के बारे में लिखी जा सकती है, क्योंकि उस डेफिनेशन में तो 99% आउट है। औरत हुस्न है, और हुस्न कहां से आता है? ऊपर से आता है, कुछ मेरी उसमें देन भी नहीं है। मर्द है इश्क, औरत सिर्फ हुस्न है। और हुस्न कितने साल चलता है दोस्तों? 25, 30, 35 साल चलता है। इसलिए जितनी भी हमारी हीरोइंस हैं 35-40 में रिटायर हो जाती हैं। हीरो चल रहा है 75 साल के भी, मिस्टर लवर भी बन सकते हैं आज भी। मैं नाम नहीं ले रही एक्टर्स को, सबको आप जानते हो। 55 साल के लड़के जो 40 साल पहले जवान थे, आज भी वही जवानी दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। और इस खूबसूरती के चक्कर में कौन सी औरत खूबसूरत है? ट्राई एंड रिमेंबर सम उर्दू पोएट्री। तुम कम सिन हो, कम सिन क्या होता है? कम उम्र। खूबसूरत वो है जो जवान है। कम सिन, कच्ची कली अनार की। इसीलिए औरतें अपनी उम्र नहीं बताती। कुछ औरतों मैंने देखा है 25 साल की बर्थडे, वो 25th बर्थडे वो 5-10 साल तक मनाती रहती है। 10 साल पहले भी 25th थी, आज भी 25th है उनकी। And we want to be young, so we remove our body hair for the rest of our life. क्योंकि बॉडी हेयर जवान लड़कियों का नहीं होता। जवान बच्चियों के चेहरे पिंक होते हैं, तो हम पिंक रंग मलते रहते हैं अपनी गालों पर। जवान बच्चियों के जवानी के होठ लाल होते हैं, तो हम लिपस्टिक से इनको लाल करते रहते हैं पूरी उम्र तक। जवान औरतों की ब्रेस्ट्स फर्म होती हैं, हम पूरी उम्र ब्रा पहन पहन के दिखाते रहते हैं कि देखो हमारी अभी भी लटकी नहीं है, अभी भी जवान हूं। So basically this notion of body in women in patriarchy हम औरतों को जीने नहीं देती, कुछ और करने नहीं देती। अगर हम प्रिटी हैं तो सड़क पे छेड़े जाएंगे, अगर हम बदसूरत हैं तो सड़क पर छेड़े जाएंगे। तो दोस्तों जरा इस पर ध्यान से सोचना पड़ेगा। और अगर आप बॉडी को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो बॉडी शेमिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। So you see from where I'm coming. Now let me talk about myself. If I was sold to patriarchy, sold मतलब मैं patriarchy के चंगुल में फंसी हुई थी, तो I will not come to you with my gray hair. I would have colored them properly. I would have a made up face. I would have सर्जरी से दूर करी हुई झुर्रियों वाला चेहरा, and I would be wearing a nice bra to show I am still young. अभी तो मैं जवान हूं। मगर fortunately for me, ये चारों चीजें नहीं हैं, ब्रा भी नहीं, छोड़ दी बहुत साल पहले। कभी गरीब औरतों को देखा है ब्रा पहनते? वर्किंग क्लास औरत को देखा है ब्रा पहने?
ब्रावो पहनती हैं जिनको अपने कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनकी ब्यूटी उनकी बॉडी में है। मुझे लगता है कि इंसान की ब्यूटी उसके अंदर होती है, उसके कैरेक्टर में होती है, उसके कंपैशन में, उसके लव में होती है, उसकी स्किल्स में होती है, उसकी एजुकेशन में होती है, उसकी औरों को मदद करने की हिम्मत में होती है। Have you ever loved anyone just because of their body, because of their color? Have you? Or do you love people who are nice? Was your grandmother, when you were born, was she very pretty, but didn't you love her? So what is this nonsense of pretty and body shaming? And is body anything permanent? I love a person, she meets with an accident. I beg your pardon, sorry. I love a person, he or she meets with an accident. Will I give her up? Give him up? So friends, I don't even want to talk too much about body shaming, because this whole notion of body in patriarchy, I think that's what we need to reject. Rather than within that system, keep talking about ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए. अरे मेरी body shaming तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए body important ही नहीं है. आप कह लो ना जो कहना है आपने. अरे देखो गुड़िया के बाल सफेद हैं, हाँ प्राउड है, गुड़िया बाल सफेद हैं. झुर्रियां हैं, गुड़िया is going to be 75 next month, तो होंगी झुर्रियां. This is what bodies are meant for. My next point, friends, is कि पेट्रियार्की में बॉडी शेमिंग सिर्फ औरतों की नहीं होती. A short man is body shamed. A lanky man is body shamed. A man who is not masculine is body shamed as effeminate. A man born with the body of a man who feels his soul is female is body shamed. So transgender people are body shamed. तो पेट्रियार्की सिर्फ औरतों को नहीं पकड़ती, मर्दों को भी पकड़ती. उसकी मसल्स नहीं है, किसी का पीनस छोटा रह गया, वो बेचारा उसी में मर जाता है, खत्म हो जाता है. मूछ नहीं आई 2-3 साल तक, वो पिताजी का रेजर लेके रगड़ता रहता है कि यार लोग चिकना 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 कह के उसको छेड़ रहे हैं. So body shaming is done of everybody because patriarchy defines everyone. And this is why I wonder at times, why don't more men become feminists? Why don't they join us and fight patriarchy? वो भी फ्री हो, हम भी फ्री हो इन तमाम चीजों से, और हम उन चीजों पर जाएं जो really important है. Character. My inside is what has to have beauty. वो beauty बाहर आ जाएगी. Gandhiji wasn't really pretty, was he? The whole world remembers him. Mother Teresa, would she be defined as pretty? But she's the one who is a saint. Aishwarya Rai saint नहीं बनेगी, Mother Teresa बनेगी. मेरी क्यूरी को याद रखेंगे. आपकी उम्र में छोटी ग्रेटा टुनबर्ग बनेगी, और मेरी नजर में आज उससे खूबसूरत कोई औरत नहीं है. ग्रेटा टुनबर्ग हर फ्राइडे को जाके बैठ जाती थी अपने पार्लियामेंट के सामने और कहती थी, सेव द प्लैनेट फेलोज. Malala Yousafzai, after shots in her body, that's what beauty is. Medha Patkar, one of the most beautiful human beings on earth. This is beauty. I think we need to totally redefine these things. Now I want to add the fourth point, friends, कि सिर्फ पेट्रियार्की अगर होती ना,
बॉडी शेमिंग के लिए, तो शायद हम बच जाते. मगर not just patriarchy is responsible for body shaming. Capitalism and consumerism today are more responsible for body shaming. This marriage between capitalism and patriarchy is deadly. And today in this globalized world, where people sitting in Gargi College and me, हम सब इस neoliberal capitalism का हिस्सा है. हम सब, to some extent or to more extent, are slaves of consumerism. And it is this capitalist patriarchy which is today defining gender, which is defining beauty. Do you realize that when India did not have an open economy in the 80s, not a single woman had become a beauty queen? The cosmetic industry was not interested in India, क्योंकि इंडिया में वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, कोई ब्यूटी क्वीन नहीं थी. Mid-80s में Rajiv Gandhi's government opened our economy, and within 4 years, 4 women from India became beauty queens, Miss Universe, Miss World. क्योंकि now market खुल गया था, अब फिर से हमें आके उल्लू बना सकते थे वो. And that's what they did. And I don't know women from Gargi College if you know that in the 70s, early 70s, late 60s, Miranda College में beauty competition हो रहा था. And young feminists of that college said, no beauty competition. We are not bodies. We will not be judged by the size of our breasts. Beauty competitions were finished. All of us feminists were against that. When? Early 70s. 80s में जब market economy खुली, beauty competitions came back with a vengeance. आज शिमला शहर में मिस ब्यूटी कंपटीशन होता है, मिस टिबेट कंपटीशन होता है धर्मशाला में, स्कूलों में होता है, छोटी छोटी बच्चियों का दिमाग खराब कर दिया जाता है. So it is this capitalist patriarchy which is, and people who follow this, they say, this is my choice. It really, is this your choice? Are you sure? Even Aishwarya Rai was not her own choice. वो कंपनी के मालिकों ने चूज किया उसको, और फिर उसकी खूबसूरती आपकी चॉइस बन गई. किसी और को उल्लू बनाना, यार ये कहते हो कि माय चॉइस. आपकी चॉइस है तो हर महीने किसी मैगजीन को देख के कैसे बदल जाती है, कभी सोचा? 20 साल पहले पतलून फटती थी तो आपकी मम्मी कहती थी बेटा सी के पहन ले, कि नहीं नहीं मम्मी मेरी बेइज्जती हो जाएगी. आज फटी हुई पतलून के मैं डबल पैसे देती हूँ. एंड देन आई से माय चॉइस. रियली? किसी और को बनाना उल्लू तुम्हारी चॉइस तो नहीं है. यू आर अ कॉपी कैट. You just look at fashion and you decide what is good for you. Think about it. So friends, consumerism and capitalism have objectified women, and now they are going to men also. Media objectified women. Fairy tales, जो बच्चियों को पालती हैं, वो मतलब मैं गांव के स्कूल में पढ़ी हूं तो मुझे अंग्रेजी की फेरी टेल्स का ज्यादा नहीं मालूम, मगर वो एक है ना जो किसी के घर में नौकरी करती थी, फिर वो जूता चप्पल, क्या था यार अलविया बताओ ना, व्हाट्स हर नेम? सिंड्रेला. हाँ सिंड्रेला, प्रिटी सिंड्रेला, ब्यूटी. और सिंड्रेला की ब्यूटी खत्म हो जाएगी, वो प्रिंस छोड़ के भाग जाएगा उसको. So this is on what our children are brought up. और एक और है वो 7 dwarfs,
Snow White. हाँ, स्नो वाइट। अब यार साउथ एशिया में स्नो वाइट कहाँ से आए बता, पहले तो स्नो लाओ यहाँ। साउथ एशिया में फेयर कहाँ से आए? सूरज चमकता है यहाँ पर दोस्तों, हम ब्राउन बनने के लिए पैदा हुए हैं साउथ एशिया में, और यहाँ फेयर एंड लवली का बिजनेस करोड़ों रुपए का। सो कॉस्मेटिक एंड फैशन इंडस्ट्री डिसाइड फॉर अस। सो दोस्तों, basically we can escape body shaming today 26th March, escape body shaming by not focusing on your body. Focus on its strength. Focus on, अरे योगा करो यार, चेहरे पे अपने आप चमक आ जाएगी। कोई अच्छा काम करो, किसी से मोहब्बत करके देखो, चेहरा चमकने लगता है। किसी भूखे को खाना खिला के देखो, आंखों में चमक आ जाती है, काजल से नहीं आती। और वो लगाने से, यहाँ क्या क्या बोलते हैं उसको, वो लगाने से नहीं आती चमक, मोहब्बत से आती है। और मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, सिर्फ लवर्स से मोहब्बत नहीं होती, मम्मी से, पापा से, भाई से, टीचर से, लड़की से, लड़के से, ट्रांस से मोहब्बत, वहां चमक आती है, वो मेरे अंदर है। एंड फ्रेंड्स, माय ब्यूटी does not diminish at 35. That is when I become more and more beautiful, more experienced, more knowledgeable, more friends, more feminism. क्या बात है, मेरी ब्यूटी 35, 40, 45, 50 में बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसा मेरा शरीर ढलता है, वैसे वैसे मेरी बॉडी बढ़ती है। देखो अब 75 की हूं, स्मार्ट हूं, है ना, एक कॉलर वॉलर देखो मेरा। और बुद्धा जी पीछे बैठे हैं, मेरे को कह रहे हैं यस स्मार्ट। डिड 75 minutes of yoga this morning, bought myself a cycle last month. मैंने कहा 75 बर्थडे पे क्या देना है तुमको अपने आप को? मैंने कहा साइकिल देंगे। अब आनंद लोक में गार्गी कॉलेज के सामने साइकिल चलाएंगे, जवान लड़कियों पर सीटियां बजाएंगे, ऐसे करेंगे। सो ब्यूटी को रीडिफाइन करना है दोस्तों, एंड देखना है कि व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू। एंड आई वांट टू फिनिश विद 3 poems. The first poem is by Meryl Streep. Again, I don't see too many films, but Meryl Streep मुझे अच्छी लगती है। So she's talking about her body when she's becoming older, and Meryl says, "Let no one deprive me of wrinkles from the forehead." उसके wrinkle आ गए forehead पे। Let no one deprive me of wrinkles from the forehead, obtained by delight over the beauty of life, nor those of my lips that show how much I have laughed and how much I have kissed, nor bags under my eyes. In them is the memory of how much I cried. They belong to me and they are beautiful. इसको मैंने हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट किया और थोड़ा सा लंबा किया। नहीं चुराने दूंगी मैं किसी को मेरे माथे की ये झुर्रियां, जो उभरी है जिंदगी की खूबसूरती को हैरानी और खुशी से देखने से। मेरे होठों के आसपास की सलवटें, जो मेरी बेहिचक हंसी और चुंबनों की देन है। मेरी आंखों के नीचे की ये थैलियां, जो मुझे याद दिलाती हैं मैं जिंदगी में कितना रोई हूं।
ये सब मेरी अपनी है और बहुत खूबसूरत है। दुनिया के डर से या अपनी हमेशा जवान लगने की लालसा से मैं कभी नहीं रंगूंगी अपने इन सफेद बालों को, क्योंकि ये धूप में नहीं पके, ये पके हैं जिंदगी के अच्छे और बुरे तजुर्बात से, और उन तजुर्बात की यादों को मैं जिंदा रखना चाहती हूँ। मेरिल स्ट्रीप and Kamla Bhasin. And my next is a long poem which I wrote last year. इस पोएम का टाइटल है क्या मैं मेकअप करती हूं। कल एक भरे हुए बड़े हॉल में जहां मैं स्टेज से भाषण दे रही थी, एक युवती ने पूछा, मैम क्या आप मेकअप करती हैं? मैं सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद सोचकर मैंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल मेकअप करती हूं। मैं अपना माइंड मेकअप करती हूं, मैं अपने सपनों को सजाती हूं, चेहरे को नहीं सजाती। सुनिएगा जरा ध्यान से। हाँ मैं बिल्कुल करती हूं मेकअप। मैं अपना माइंड मेकअप करती हूं, मैं अपने सपनों को सजाती हूं, मैं अपने इरादों का मेकअप करती हूं और वादों का मेकअप करती हूं। हाँ मैं मेकअप करती हूं। एक बार फिर उस युवती ने पूछा, अरे मैम आप अपने शरीर का मेकअप करती हैं क्या? मैं फिर सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद सोचकर मैंने बोला, हाँ दोस्त, मैं शरीर का भी मेकअप करती हूँ। शरीर से मेरा अच्छा रिश्ता है, इसकी इज्जत करती हूँ, उसके ओरिजिनल रंग रूप अपनाती हूँ। ऐश्वर्या सुष्मिता से तुलना करके उसको कमतर नहीं बताती हूँ। चूंकि अपने जिस्म को चाहती हूँ, अपनाती हूँ, मैं उसको खूब सजाती हूँ। पता है कैसे सजाती हूँ? हर दिन 1 घंटा सिर्फ उसके संग बिताती हूँ, उसे सैर पर ले जाती हूँ, योग से सशक्त लचीला बनाती हूँ, और अब तो साइकिल खरीद लाई हूँ। अब मैं साइकिल पर जाऊंगी। ये पोएम में नहीं है, ये मैंने अभी जोड़ा है। ताउम्र मैंने शरीर को संवारा निखारा, शरीर देता रहा है मुझे सहारा। मेरा शरीर और मैं 75 साल के हैं, पर न मैं बेचारी न मेरा जिस्म बेचारा। और दोस्त, जिंदगी संवारने के लिए निहायत जरूरी एक और मेकअप है जिसे करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। वो मेकअप है गलत फहमियों और झगड़ों से पैदा हुई दरारों का मेकअप। जब आपका झगड़ा हो जाता है किसी दोस्त से, and then you need to make up. I'm talking about that makeup, friends. गलत फहमियों से, झगड़ों से, रिश्तों में पैदा हुई दरारों का मेकअप। दुखती रगों पर फाउंडेशन की मोटी परत लगाकर खराब रिश्तों को ढकती छुपाती नहीं। बातों से कड़वाहट को धोना चाहती हूँ। हर गलत फहमी को एक एक करके प्लक करना चाहती हूँ। Every misunderstanding with my friend, I want to talk and make up with her, with him. बिगड़े रिश्तों को माफी मांगकर, माफी देकर, मनाकर, समझकर, समझाकर फिर से खूबसूरत बनाने की चाहत रखती हूँ। तो देखा, मेकअप। मगर दोस्त, अगर मेकअप से तुम्हारा मतलब वो है जिसे मगर डॉक्टर जसविंदर कौर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ तो जरा साइलेंट कर लो। मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ आ रही हैं। जरा सा साइलेंट से कर लो। I'm on mute, ma'am. अच्छा, तुम्हारे वहीं से। अच्छा
गुड। तो मगर दोस्त, अगर मेकअप से तुम्हारा मतलब वो है जिसे मैं फेकअप कहती हूँ, तो वो मैंने कभी नहीं किया। मेरे रंग, रूप, शक्ल, सूरत जैसे हैं मुझे पसंद है। मैंने कॉस्मेटिक्स के इश्तहारों को, सौंदर्य के बाजारों को कभी भी मुझे इंफीरियोरिटी का एहसास नहीं कराने दिया। मैंने कोशिश की है हर नकली चीज को नकारने की, नकली चेहरों को भी। तो मेरी जवान उत्सुक दोस्त, लोगों को हमेशा मुझे उसी रूप में अपनाना पड़ा जैसी मैं। अब जो भी मुझे चाहते हैं मेरी झुर्रियां अपनाते हैं, मेरे सफेद बालों को सहलाते हैं, मेरे चढ़ते बुढ़ापे से न कतराते हैं न घबराते हैं। हमेशा से मैं जैसी हूं वैसी दिखती हूं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Can't thank you enough, ma'am. And wonderful. Makeup nahi, fake up nahi, makeup. Make up your mind. Make up against the challenges of ego, ma'am. Wonderful. Alvia, I request you now to take the questions. And first, what we'll do is that we'll take up the questions which students have given you. And then I'll request anyone of our colleagues who wants to chat with ma'am, she can unmute herself. She or he can unmute herself or himself. So Alvia, I'll request you to first take up the questions which you have already been given by the students. Ma'am, we haven't received any questions so far, so I was thinking everybody who wants to interact can raise their hands from the option given below and we can call out the names. All right, So perfect. all those interested, please raise your hands and we'll call out. Yeah. And Any Alvia, question, any comment? can we request them to please tell their name when they ask the question so that I can address Yes, them? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. So I can't see the raising hands, but can I ask? May I speak? Yes, please. Okay, so Ms. Basin, my name is Rashmi Bharadwaj. मैं फेमिनिज्म ही पढ़ाती हूँ। तो मेरे से क्या पूछ रही हो रश्मि? मेरे को डराना चाहती हो? नहीं जी, मुझे पूछना नहीं है, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जी प्लीज। तो बहुत बार क्लास में ये प्रिटी वाली बात हम बहुत डिस्कस करते हैं कि कैसे एक एंड उसमें हमेशा ही बारबी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि वो कि वो ऐसा अजीब सा ग्रेविटी के अगेंस्ट एक बॉडी बना के दिया गया है, और बच्चे और गर्ल्स कैसे उसके साथ खेलते हैं और कैसे वो एक उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जो बात मुझे एक्चुअली मिस बसीन आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वंस टोल्ड मी, शी सेड दैट मैम अगर ये मेरी चॉइस है, then we went on to choice feminism, and she said that if I want happily to live life, making myself up to live life fitting into the Barbie stats that she has, then why should I be looked down upon? Why should feminists mock at me? And she was not very happy that she was attending a feminist class. She was not also very happy that feminists look down upon her or that they would mock at her. So I just wanted your जी नहीं रश्मि, ये बहुत important question है, और इस पर because there is no one feminism, there are multiple feminisms and there are different opinions on these issues. So मैं ये कहूंगी कि उसका मजाक हमें भी नहीं बनाना चाहिए। कोई बारबी को प्यार करती है, मोहब्बत करती है, तो मजाक बनाने की तो बात नहीं है, मैं उसका मजाक नहीं बनाऊंगी। मगर डोंट एक्सपेक्ट मी टू कंग्रेचुलेट यू फॉर सच चॉइसेस, बिकॉज फॉर मी every choice, सिर्फ choice is not important. A man chooses to rape me, I will not accept his choice.
A man chooses to harass me. I will not accept his choice. And friends, we live in societies. मुझे याद है मेरी बेटी 3 साल की थी और इंग्लैंड से कोई औरत आई मेरे यहाँ रहने. A very kind woman, and she says, Kamla, I don't give any present to a child without asking her parents. So may I give your daughter a Barbie? मतलब सबसे only thing I couldn't tolerate उसने लाके, मैंने कहा I am really sorry, आप उसको अपने सूटकेस के बाहर भी मत निकालना, मेरे घर की हवा से अपने आप मर जाएगी आपकी बारबी. तो बंदूक बेटों के लिए और बारबी बेटियों के लिए घर में नहीं आई. So I feel choice feminism does not work for me. What works for me is the politics of that choice. उस choice की politics क्या है? अब ठीक है, आप तो बारबी बन सकती हैं, आपको तो मिली है ना वो ब्रेस्ट, या आपके पास पैसा है, आप उसमें सर्जरी करा के बढ़ा लेंगी. उसका क्या होगा जिसको ब्रेस्ट वैसी नहीं मिली? उस पे हंसोगी फिर तुम? तो चॉइस उस चीज की करें जो हमें आजादी दे, जो हमें जिस्मों के परे ले जाए. और इस जिस्म का क्या है, ये नोची जाएगी ब्रेस्ट, और ये ब्रेस्ट दूध पिलाने के लिए बनती हैं. ये बॉलीवुड में गीतों के लिए नहीं बनती, इनके चोली के पीछे क्या है, और शीला की जवानी. ये ब्रेस्ट इंसानों को पैदा करने और उनको बढ़ाने के लिए पैदा हुई है. इनको खिलौना पेट्रियार्की ने बनाया है. तो अगर आपको पसंद है मैम कि आप खिलौना बनी रहें और अपनी ब्रेस्ट से लोगों को खुश करती रहे, अपने कपड़ों से उनको खुश करती रहे, तो प्लीज बाय ऑल मीन्स, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, बिकॉज इफ आई रिस्पेक्ट यू then I can't respect my own choices. और जो मैंने चूज किया है वो भी मैंने बहुत सोच समझ के चूजा है ना. Thank you, Rashmi. Very important question, very difficult question. And I would again say, even in such cases, no shaming of the other person, discussion, dialogue, explaining. Because shaming of anybody is bad. All right. Thank you. Next question, Olivia. Can I ask something? Please, Can I ask Kiran something? goes on. Okay. Ms. Bhasin, I'm Deepika Chatterjee. I जी, have a दीपिका. problem. मेरा problem है, I have a 3.5-year niece, grandniece. जी. अभी से वो प्रीति का उसका concept उसको पता है. So, you know, though we tried to dissuade her, you know, with all our talk, but she is so stuck up with this. Imagine, she's just 3.5-year old, and because of the COVID, she's not able to mix up with her kids of her age. And because the parents have to work online, she's going on watching videos. And she, as a 3.5-year child, she is just thinking about what is pretty and what is not pretty. She is making her choices so early. So my issue is, it's kind of it seeps into one's psychology or in psych from such an early age. And definitely, even amongst us, Ms. Bhasin, you will find in the college level also, this kind of body shaming is going on with so-called, you know, you can say people who are seeped into academics. They are also so much into it. So how to come out of this kind of vicious circle, I would like to call it, that especially for the youngsters or the tender minds, because it's not, they are not only exposed to us, they are exposed to so many other things. And because of this technology, so many things are available. So it's really a problem which I find that it's really, God knows how to, I do not know how to handle it. Yeah, any solution? Yes. तो solution इसका सिर्फ ये है कि पेट्रियार्की को खत्म करना है और इस कंज्यूमरिस्ट कैपिटलिज्म को खत्म करना है. इसके अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल सकते. और ये लंबी लड़ाई है. हम सब इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं.
In the 80s, when we started our feminist lives and campaigns, we set up a committee on the portrayal of women in the media, and we started working on it. आप लोग देश के सबसे अच्छे institutions में से हैं. This is your job now to fight this kind of consumerism, जो जहर ये लड़कियों और लड़कों में फैला रहे हैं. Boys are watching that wrestling federation, those horrible men and women fighting each other, बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं. And लड़कियां, and you look at all these, कौन से वो टीवी पर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लड़कियां और लड़कियां आके नाचते हैं? What are the songs on which 4-year girls are dancing? They are pornographic songs. And उनके पेरेंट्स लेके आए हुए हैं कि हाय हाय इसकी लॉटरी निकल आए तो हमको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, यही कमा के ले आएगी. अरे तब तक तो उसको चबा के खा के फेंक देगा बॉलीवुड हॉलीवुड. So you are absolutely right. When we were growing up, there was one channel in India, Doordarshan, in the late 70s. और वो भी इतने घरों में नहीं थी, मोबाइल नहीं थी. अब तो ये जहर हर मोबाइल में है. और इसके साथ साथ फिर पोर्नोग्राफी भी आ जाती है. जैसे ही आपकी 3.5 साल की बच्ची, जैसे ही वो सीख रही है अपनी बॉडी को संभालना, वैसे ही उसका भाई सीख रहा है लड़की की बॉडी को कैसे काबू करना है. वो अपनी बहन को शायद छोड़ देगा, लेकिन पड़ोस की बच्ची को तो पकड़ लेगा ना. आज 10-10 साल के लड़के रेप कर रहे हैं, 12-12 साल के रेप कर रहे हैं. तो दोस्तों इसको कैसे, मतलब हाउ कैन यू फाइट इट? This is what our economics is. How do you measure your economics? Pornography is part of your GDP. और pornography freedom of choice है ना, करते जाओ freedom of choice, and worse rape cases. So I really don't think there is an इलाज within these systems. And look at the power of these systems. तो मैंने आपको अपनी छोटी छोटी 3 कविताएं सुनाई. कितने लोग सुन लेंगे इसको? बहुत ही सक्सेसफुल हो गई तो ठीक है, 1-8 लाख लोग सुन लेंगे. पर चोली के पीछे क्या है, कितने मिलियन लोगों ने सुना था? और वो जो गाना है कि मैं तंदूरी मुर्गी हूं, मुझे विस्की से गटका ले, लौंडिया पटाएंगे मिस्ड कॉल से. The first film to make 100 crores. पूरी जागोरी जिसमें मैं काम करती हूँ, हमारा साल भर का बजट 1 करोड़ नहीं होगा. And we are trying to speak against all this. उनका बजट तो हजारों करोड़ का है. Awful lyrics, awful. और किसने उनको 100 करोड़ का बिजनेस दिया था? We, the people of India. एक चॉइस वाले लोग. उसके बाद दबंग 2 बनी, फिर वही सक्सेस. उसके बाद दबंग 3 बनी. तो किसको गालियां दूं मैं? डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, या हम भारत के लोग जिन्हें यही पसंद आता है? और चूंकि हमारे मर्दों को ये पसंद आता है, फिर वो अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते. 18 साल में शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में खोट है. वो समझते हैं हर मर्द ऐसा है. सो पूरे कुएं में दीपिका जहर है. और हम लोग बातें करते रहे, 1-8 घंटा बात करेंगे, फिर जाके फिर शीशे के सामने जाके ठीक कर देंगे अपना से. Thank you. Hello. Ma'am, the Thank next you, is Ms. Baseen. This is Manisha Roy. जी मनीषा. May I ask a question? जी ऑफ कोर्स मनीषा. एक मेरा छोटा सा सवाल है. आज जो नोशन ऑफ नेशनलिज्म है, the kind of banana nationalism we have today, आप इसको हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं, उसका एक काउंटर भी है. ये नोशन भी तो पेट्रियार्कल है. जब ब्रेवरी और वैलर को हम मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स मानते हैं, तो हम किस काइंड ऑफ नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं? इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? नहीं, इस पर मैं नहीं बोलूंगी. मेरा टॉपिक, मतलब मैं बोल सकती हूँ मगर मैं बोलूंगी नहीं, बिकॉज आवर टॉपिक इज बॉडी शेमिंग and its topic is not nationalism. But I agree with you. But
I will let other people talk about the topic for which we are here. Sorry, Manisha. Ma'am, Can we proceed to the next question? Hello? Can I ask Alvia? Can I ask a question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I Yes, ma'am. speak? Pallavi, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Thank you so much, Kamala ji. I mean, like, we are just speechless. I mean, इतना खूबसूरत, इतना सच्चा, जो आपने, I mean, what should I say? I mean, should I say talk, lecture, speech? I mean, but totally, I mean, inspiring, you know, and totally genuine from the heart and unique. So I just want to say one or two things. Actually, I'm so much overwhelmed that I am not finding the words to express. But I'll try. So, Kamala ji, आपने कहा कि ये जिस्म की पेंटिंग नहीं, जिस्म की लीपापोती नहीं, मोहब्बत करो. Such a beautiful thing that instead of painting the face, the entire body, and all those, you know, instead of concealment and projection, what is wonderful is mohabbat karna. And this is what we all believe in, ki universal values to yahi hai na, mohabbat, true love, kindness, compassion. But फिर मन में एक ख्याल आता है कि yes, this is what we all subscribe to, kindness, compassion, karuna, true love. But then उस मोहब्बत आप किसी से कर रहे हैं, उसमें भी फिर एक और complexity आ जाती है, that one party is loving sincerely, genuinely, sacrificing, and the other party is, उसके लिए मोहब्बत का मतलब sacrifice बिल्कुल भी नहीं है. उस मोहब्बत में भी एक exploitation और एक subordination आ जाती है, and colonization, like you said, women are the colonies. So, मोहब्बत में भी वो ही colonization है, एक party male हो या female हो. Because I have observed all kinds of cases. One party is simply, you know, submerged, tolerating, simply to make the relationship work, tolerating everything. वो genuine मोहब्बत कर रहा है अपनी तरफ से, और इसीलिए sacrifice भी कर रहा है to make it work, you know, to create, you know, goodwill, good atmosphere, everything. और दूसरी पार्टी जो है वो पूरा ही मतलब like you said in the beginning, निचोड़ के कचुम्बर ही निकाल देंगे और फिर भी कोई कदर नहीं. So वो sacrifice होनी चाहिए. I mean, it should be, you know, हमारे दिल के अजीज होनी चाहिए. लेकिन एक पार्टी sacrifice कर रही है, उसको sacrifice करके वो तो खत्म भी हो गई. दूसरा पार्टी जो थी वो तो वो ही रही, demon ही रहा, monster ही रहा, नियत बदली नहीं. And secondly, like you said, na, that even boys are body shamed कि height छोटी है तो, and I think we all know that if a boy does not have a girlfriend or he does not have a pretty girlfriend, तो उसकी भी shaming उतनी ही होती है. So I mean, this is where we stand. I mean, कब कैसे हम निकलेंगे इससे मालूम नहीं. जी, आप पल्लवी बोल रही हैं ना? Yes, yes, yes. हाँ, तो पल्लवी बिल्कुल सही आपने जो कुछ कहा, मैं आपसे एग्री करती हूँ. तो एक तो जिस लव की मैं बात कर रही हूँ वो लव सिर्फ एक लवर, एक मियाँ, एक बीवी से उसकी बात नहीं थी. I was talking of love of which Kabir talked and said, "Kedhai आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए." I'm talking of love about which Nanak spoke. Every Sufi speaks. I'm talking of that love. I'm talking of Ubuntu, the African notion. I am because you are. I'm talking of Vasudev Kutumbakam. I'm talking of the love Gandhi spoke of. Greta Thunberg, the 19-year-old, speaks love for the universe. I'm talking of the love which people showed जब migrant workers अपने गांवों को वापस जा रहे थे भूखे मई की गर्मी में, जो अपने घरों से उनको लाके पानी पिला रहे थे. मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ. और दूसरी जो आपने बात कही कि शादी में लव एक देती जाए दूसरा लेता जाए, तो मुझे लगता है कि अब हम पढ़ लिख रहे हैं तो कम से कम ऐसी शादियों में से तो निकलना सीखना चाहिए ना हमें, क्योंकि एक जिंदगी मिली है पल्लवी. एक जिंदगी किसी ऐसे के साथ गुजार कर जो नर्क बना दे. और फिर दूसरी बात यह है कि वो क्यों
सीखे। उसको जरूरत क्या है सीखने की? औरत को तो सीखना पड़ेगा। माँ बाप ने कोई घर नहीं दिया, माँ बाप ने कोई नाम नहीं दिया, नाम भी इसी से मिल रहा है, घर भी इसी से मिल रहा है, गाड़ी भी उसी की यूज कर रही हूं, तो रोटी कपड़े मकान के लिए रहती हूं उसके साथ में। वो क्यों बदले? उसका तो सब कुछ अपना था, अपना है। ना तो उसने नाम बदला, ना उसने धाम बदला, ना उसने काम बदला, ना उसने कपड़े बदले, ना उसने मेकअप बदला। उसकी जिंदगी में आप एक छोटा सा हिस्सा बन के आई हैं, जबकि आपकी जिंदगी में वो सब कुछ बना दिया आपने उसको। तो 2-4 साल ट्राई कर लो यार, अगर नहीं चलता तो रास्ता दूसरा पकड़ो, खुद को मोहब्बत करो, तरीके से जियो छोटी सी झोपड़ी में, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा आपकी बनाने वाली को कि व्हाट डिड यू डू पल्लवी, व्हाट डिड यू डू कमला विद योर लाइफ? I made you a human being. Did you crawl all your life? Or you tried to make something out of your own life? तुम भी उतनी ही इंसान हो जितना वो है। तो दोस्तों, मैं तो यही समझती हूँ कि अगर आप पढ़ लिख रही हैं तो कम से कम इतनी हिम्मत तो अपने अंदर पैदा कर लेना, इतनी स्किल्स अपने अंदर पैदा कर लेना। सिर्फ सुंदर सुंदर लग के एक मर्द को पकड़ लोगी तो 2-3-4 साल के बाद उसको फिर जवान औरत चाहिए होगी। आप बच्चा पैदा करके बूढ़ी हो गई होगी, आपके अंदर से अब परफ्यूम की खुशबू की जगह हल्दी और धनिए की बदबू आ रही होगी। तो थोड़ा सोचिए ना, इस जिस्म के चक्कर को लेके जाओगे कहाँ? And my thing is, if you believe in the body, then body shaming will continue. Give up believing in the body too much. Believe in it by looking after it, by cycling, by yoga करना, walk करिए, कसरत करिए, बॉडी बनाइए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, और फिर निकल पड़िए। But within this definition of body, body shaming will be there. So you choose. Thank you, Pallavi. Next. Next is Can Karuna. I say one second, Albia? Hello? Can I just add one thing, Am I audible? Albia? Yes, ma'am. Hello? Karuna, just can you go next? Pallavi ma'am wants to complete what she was saying. Next is Karuna Okay. after Okay. Pallavi ma'am. I just want to clarify. I was also trying to say that ये true love जिसमें हम believe करते हैं और करना चाहिए, ये भी एक one way street है. It's like, yes, if we subscribe to the ideal, then I mean we want to walk the path, we should walk the path, लेकिन path will be lonely. उसमें cooperation मिलेगी, ये जरूरी नहीं है. हाँ, लेकिन I mean true love only between two people. I mean that for me, मेरी जिंदगी इतनी बड़ी है कि 2 जनों के मोहब्बत में तो मेरा काम नहीं बनता। मैं तो लाखों से मोहब्बत करना चाहती हूँ। Yes, true. Let's go. करुणा। करुणा देखिए क्या खूबसूरत नाम है। I'm talking of Karuna, which Buddha talked Thank you about. so much, ma'am. Talking of Thank you compassion. so much. I'm not talking of love between two people. जी Karuna. First of all, very good morning, ma'am. It's an honor to talk with you and to discuss about these things, and it's a privilege. I still remember the day when I saw your that talk in the Satyamev Jayate episode, and I really appreciated that. And ma'am, so coming to directly to the point. So I was born and brought up in a rural family in Rajasthan, and right from my beginning of the childhood, I used to question, I used to debate, I used to discuss about the things, but but I still feel I was privileged enough that I was getting a chance to be educated, and I came here in Delhi getting this chance to discuss about patriarchy, about these things. But the question that I have in my mind is that we have a choice. Okay, I believe we are privileged enough that we are getting the chance to discuss about patriarchy, about these issues. And even this is a privilege that we are kind of reflecting that, okay, there are so many things that have been internalized by the patriarchal society, and we are learning, we are coming out of that, and we are growing. But can we do something for the others who are
You know, not only about the non-educated, even the educated women, and not only men, and even the women and girls, they are not aware that, okay, the feminism is the need of the hour. So can we do something? And not only them, I have observed so many people, so many women in the rural area, you know, if we have a choice, but they don't even have a choice. The choice about their education, choice to work, choice even about their reproduction, choice. I mean, they don't, I feel so helpless that can I do something for them? So just wanted to know that. Yeah. As an individual. Well, of course, I mean, I agree we have to do. And as Alvia introduced me, 1970 में मैंने शुरू किया था ये काम और आज 51 साल हो गए हैं। मगर मैं एक बात बताना चाहती हूँ करूँगा, मैंने 50 साल में जो सीखा वो ये सीखा है कि जरूरी नहीं है कि जो अनपढ़ हैं, जो गांव में हैं, वो हमसे कम फ्री है। आई डू नॉट बिलीव इन दिस, दिस इज अ मिथ। मैं ये मानती हूँ कि मिडिल क्लास औरत, अपर क्लास औरत, शायद जो औरत उसके घर में सफाई करने आती है उससे कम फ्री है। तो हमेशा हम मिडिल क्लास औरतें ये सोचें कि मैंने गार्गी कॉलेज से एमए कर लिया तो मैं फेमिनिस्ट बन गई। आई डोंट बिलीव दैट। मैं तो ये मानती हूँ, ये जानती हूँ कि हमारे कितने सारे कानून हैं जो हमें गांव की औरतों ने दिलवाए हैं। ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द प्लेस ऑफ वर्क है, ये तुम्हारे और मेरे राजस्थान की औरत भंवरी देवी, जो चौथी पांचवी भी पास नहीं थी, who took up the case of gang rape because she was fighting against child marriage in Rajasthan. और ये जो कानून है, ये भंवरी देवी की वजह से हमें मिला। रेप का कानून हमें एक आदिवासी औरत मथुरा, जिसका रेप पुलिस थाने में हुआ था 1979 में, उसकी वजह से मिला। और आज भी आप देख लीजिए, आज जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें जो हजारों औरतें बैठी हैं, कितनी हैं गार्गी और कमला नेहरू कॉलेज की जो वहां बैठी हैं, और कितनी हैं गांव की चौथी पांचवी छठी पास जो देश में डेमोक्रेसी बचाने के लिए बैठी हुई है इतने महीनों से। So I feel a working class woman जो अपनी मेहनत से कमाती है, वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास औरत से शायद ज्यादा फ्री होगी। तो हमें पार्टनरशिप करनी है। हमें उनको अपने से कमतर, अपने से वीक, अपने से लेस फेमिनिस्ट समझकर, आप देखिए तो सही उनकी हालत। आपके काम करने वाली आती है और आपके सामने कहती है, आज मेम साहब उस हरामजादे ने फिर मुझे मारा। और आपको भी आपके मियां ने मारा होता है उस रात को, मगर आप काला चश्मा लगा के किसी को बता नहीं पाती हैं कि आपने भी मार खाई थी। So I agree with many things you are saying, Karuna, but I don't agree that every time it is the rural women who are less free. Each Yes, case. Acha, no, you don't have to answer. There are other people. This is not a dialogue anymore. So just think about that. हो सकता है सबसे पहले आपको अपनी भाभी या अपनी माँ को ही लिबरेट करना पड़े, वो गांव वाली से पहले। हम जहां हैं वहां से अपना फेमिनिस्ट काम शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहला फेमिनिस्ट काम हमें खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रियार्की हमारे अंदर बैठी हुई है। आपके और मेरे कपड़ों में, आपके और मेरे झुमकों में, आपकी और मेरी स्टाइल में पेट्रियार्की धरना दिए बैठी है। So instead of always looking out, let's begin with looking in and begin with ourselves. That's where we need to go. Thank you very much. So much, ma'am. Ma'am, now we have Dr. Veena, then Riddhi, and then Manan Agarwal. हेलो जी, गुड मॉर्निंग कमला मैम। Morning. हिंदी डिपार्टमेंट से आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगा है। जब मैंने आपको सुना है तो मैंने हमेशा ही, पता नहीं, शायद और ज्यादा एंथुसिज्म जो है वो पूरी बॉडी में करंट जैसा दौड़ जाता है आपको जब सुना है। मैं शेयर करना चाहती थी, मेरी एक हेल्पर है, यानी घरेलू सहायिका जो आती हैं, तो अभी 15 दिन पहले मैंने उसे चेंज किया। तो एक दिन हम दोनों चाय पी रहे थे बैठ के,
तो उसने मुझे ये कहा कि जब ये क्वारंटाइन का टाइम था, तो कहती है जिस घर में मैं किराए पे रहती हूँ, तो किराया नहीं दे पाई थी क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो रिक्शा चलाता है, तो इतने पैसे नहीं थे और घर भी छूट गए थे और एक ही घर था काम करने के लिए। तो कहती है कि मेरी मकान मालिक ने ये बोला कि अच्छा तू किराया नहीं देगी ना, तो अपने आदमी को तेरे कमरे में भेज दूंगी मैं। तो इस तरह की औरतों को ना, मतलब वो यकीनन अपने हस्बैंड से खुद मार खाती होगी और वो मार का सारा बदला वो इसके ऊपर उतारती है इस तरह की बातें करके। तो ये जो चीजें हैं ना, मैं हिल गई उसकी बात सुन के ना। तो आप ये देखिए, ये वाला एक सेगमेंट भी है, उसको हमने कैसे चेंज करना है, मुझे ये समझ नहीं आता कि जहां औरतें जो है वो मर्द का रोल अदा करने लगती है उस तरह का। तो ये बड़ा हॉरिबल है। और मर्द तो है ही है, मर्द तो है ही। मैं तो जानती हूँ हमारे आसपास इस तरह के मर्द हैं जो पूरा हुकूमत करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि विमेन डिस्कोर्स जैसा जो टॉपिक है ये पुरानी बात है, और वो अब मैं पूरी बात डिस्क्लोज करना नहीं चाहती, लेकिन एजुकेशन लेवल पे ही बंदा वो ये कहता है कि नहीं नहीं इसको तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि लड़कियां रेडिकल हो जाएं। विमेन डिस्कोर्स जैसा पेपर। तो ये चीजें जो है ना, ये बड़ा दिमाग को उलझन में डाल देती हैं कि कैसे डील किया जाए इन लोगों से, चाहे वो ऐसी औरतें हैं चाहे वो ऐसे मर्द हैं। थैंक यू वीना। माय गॉड, तो मतलब ये जो आपने जिनका बात की वो अपने हस्बैंड को एक प्रोफेशनल रेपिस्ट के जैसे देखती हैं। वो उस औरत को कह रही है कि तू अगर किराया नहीं देगी तो मैं अपने हस्बैंड को तेरे कमरे में भेज दूंगी। वो ऑफिशियल रेपिस्ट है, रोज रात को मुझे भी रेप करता है, अब तेरे पास भेज दूंगी। आई मीन इमेजिन व्हाट डज शी थिंक ऑफ द मैन। रेपिस्ट है, उसको सजा देने भेज देगी। वाओ। एंड नाउ कमिंग बैक टू करुणा's क्वेश्चन, करुणा ये पढ़ी लिखी औरत है जो अपने हस्बैंड को रेपिस्ट बना के भेज रही है एक वर्किंग क्लास औरत का रेप करने के लिए। तो बीबी, जिस तरह की एजुकेशन आज हमें मिल रही है उसी एजुकेशन को लेकर डॉक्टर बन रहे हैं जो हमारी भ्रूण बता देते हैं कि फीमेल है कि मेल है, और फिर उसका रेप, उसका अबॉर्ट करने में हमारी मदद करते हैं। यही है जो मिनिस्टर बन के न जाने क्या क्या बयान देते हैं। तो अगर एजुकेशन से सब कुछ मिट गया होता बीबी, तो आज देश में रेप ना होता, आज देश में बढ़ता हुआ लड़कियों का अबॉर्शन ना होता। So this education has only teaching us to be greedy, to be corrupt, to pollute the minds and to pollute the planet. So education is no indication of feminism. अब मैं आप लोगों को एक बताना चाहती हूँ, एंड मीना मैं ये कहूंगी यार, आप लोग किस्मत वाले हो, यू डील विद थाउजेंड्स ऑफ यंग वुमेन। इनके साथ ही हम काम कर लें, इनको ही थोड़ा बहुत बदल दें, मगर यहाँ भी अब कितने घंटे हम इनके साथ गुजारते हैं, हम खुद कितने इन चीजों को जानते हैं। मुश्किल ये है, वरना आज जितने विमेंस कॉलेज हैं इनको तो बदल के रख देनी चाहिए थी सूरत हमारे देश की, और जो मर्दों के कॉलेज हैं उनको बदल के रख देनी चाहिए थी। मैं आप लोगों को दो चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। एक तो किताब है, दिस इज अगेन रिस्पॉन्डिंग टू करुणा चौधरी अबाउट मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास। एक महिला है दीपा नारायण, प्लीज नोट डाउन द नेम। दीपा नारायण ने एक किताब लिखी है चुप, हिंदी उर्दू वाला चुप, साइलेंट, मगर किताब अंग्रेजी में है। और ये किताब उन्होंने 650 औरतों को इंटरव्यू करने के बाद, एंड ये 650 औरतें बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया से पढ़ के निकली हैं। एंड शी कंक्लूड्स कि इन मोस्ट मॉडर्न विमेन पेट्रियार्की के सिन से भरी हुई, स्किन डीप है उनकी मॉडर्निटी, स्किन डीप है उनकी चॉइसेस,
You should really try and read this book, friends. जरा लाइए और देखिए कि आपसे कितना मिलती है, और शेयर कीजिए एक दूसरे से। Amazon पर है। और आजकल दीपा नारायण एक पॉडकास्ट कर रही है, रोज फेसबुक पे मुझे वो दिख जाता है, ऑन मेन एंड मैस्कुलिनिटी, कि पेट्रियार्की मर्दों को कैसे घेर कर बैठी है, और ये जो मर्द अपने आप को तोप समझते हैं, उनका भी बैंड कैसे पेट्रियार्की बजाती है। सो डू रीड दीज थिंग्स एंड सी कि ये जो हम डाइकोटमी करते हैं कि हाय हाय बेचारी गांव की, बेकार, उसको मैं कैसे लिबरेट करूं। अरे उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो मैडम, अपनी बॉडी लैंग्वेज देख लो, फिर देख लेना किसको लिबरेट होना है, आपको कि उसको। थोड़ा सोच लीजिए। थैंक यू। Alvia. Ma'am, next we have Riddhi Raghuvanshi. Riddhi, please switch on your camera if possible while asking the question. Yes. I'm Riddhi Raghuvanshi. I'm a second year philosophy honors student. It was amazing session with you. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. You are very good, ma'am. Please थोड़ी praise और करो ना मैम, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैम मैं कर देती हूँ, कोई नहीं मैम। मैम पता है कि जब आपका हमने सुना था कि लाइक यू आर कमिंग एंड ये टॉपिक है, मैंने तुरंत ही रजिस्टर कर दिया, मतलब अब तो बहुत सही वाला होने वाला है। बिकॉज पेट्रियार्की तो मेरे को लगता है कि सबके खून में ही बसी हुई है। इट्स लाइक हमारे बॉडी में खून नहीं है, पेट्रियार्की है। मैं अभी जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो मेरे फ्रेंड्स के साथ ये सब डिस्कस कर रही थी, तो वी वर डिस्कसिंग कि कैसे बचपन में लाइक हमें ये बोल दिया जाता है कि नहीं तुम लड़की हो। बोला भी नहीं जाता एक्चुअली, ऐसे हम आपस में इतना देखते हैं कि हमारे दिमाग में वही चीज बैठ जाती है कि हाँ हम लड़की हैं, तो अगर कोई आंटी आ रही है, कोई अंकल हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको पानी देने जाते, चाहे हमारा भाई वहीं बैठे। तो और इसके साथ ही फिर बॉडी शेमिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एज एन लड़की हो, बड़ी हो रही हो, टीनेज में आ गई हो, एडोलसेंट हो, तो अब चलो ठीक है फ्रॉक नहीं पहन सकते, अपने ब्रेस्ट को ढक लो, ये कर लो वो कर लो। और इसमें सिर्फ मम्मी नहीं, मतलब पापा तो खैर ठीक ही है, बट मम्मी भी ऑलरेडी वो झेल के आई हैं, अब वो अपने डॉटर्स को भी यही सिखा दी कि तुम ये चीज करो। इवन फॉर एजुकेशन, एज एन अगर हम हाई सोसाइटीज में देख लें, सो कॉल्ड हाई सोसाइटीज में, तो वहां पे लड़कियां पढ़ती क्यों हैं, वो डिग्री क्यों लेती हैं, क्योंकि शादी करनी है उन्हें। मतलब उनका सोल पर्पस है कि अगर एमबीए जाना है तो क्यों, क्योंकि अच्छा ग्रूम मिलेगा। बेशक। और चॉइसेस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चॉइसेस, मेरा ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज कि चॉइसेस भी हमारे पास कहाँ है। चॉइसेस भी तो ये इस सोसाइटी की बनाई हुई हैं, हमारे पास खुद की तो कोई चॉइस है ही नहीं कभी। बिल्कुल। अगर हम लड़ भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी पेरेंट्स अलाउ नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हें पता नहीं है। बट जब आप बाहर निकल जाते हो उसके बाद घर पे आप छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट करते हो, तो उसमें भी फिर आपको ये बोल, मेरे को तो कई बार सुनने को मिला है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिल्ली जाके। तो हाउ टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, एज एन आप किस, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम स्टार्ट कहाँ से करें। हर चीज इतनी ज्यादा है, इतने बड़े लेवल पे है, हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें इस चीज को। या बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं तो गांव के स्कूलों में पढ़ी, 10वीं मैंने गांव से करी थी, राजस्थान से। मैं ये चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हैं तो इतना तो कर लो कि अपने पैर पर खड़ी होने लायक बन जाओ। खड़ी होने लायक तो बनोगी नहीं, ऐसे अपने कपड़े वपड़े के चक्कर में लगी रहोगी, 2-4 साल बाद कन्यादान करवाओगी। यू विल बी गिवन अवे टू अ मैन, कन्या का दान होगा और तुम अपना मुंह काला करके कन्यादान एक्सेप्ट करोगी। तुम उसका नाम लोगी, जहां कोई कानून भी नहीं है नाम बदलने का, पर आप नाम बदलोगी। तो कुछ करोगी नहीं तो चॉइसेस आएंगी कहां से। और अगर आप गार्गी कॉलेज में पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास चॉइसेस नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू। डोंट गो ऑन ब्लेमिंग योर पेरेंट्स। हम तो राजस्थान के गावड़े में पढ़ के यहाँ पहुंच गए बिकॉज डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है। और
You know, let's not discuss. तुम सोचो जरा इसके ऊपर. कि कपड़ों के चक्कर में पड़ने से ज्यादा अपने 95-100% लाओ. हम तो 57% वाले हैं. 57 कॉलेज में, बीए में 59 इतने आए थे. जिंदगी से लेने हैं नंबर, जिंदगी से लेने हैं, इन बेकार के इम्तिहानों से नहीं. मगर टुडे यू कैन रेडी लेके अपने पैर पर खड़ी होने लायक बन जाओ, एंड योर ओन पेरेंट्स विल बी कन्विंस्ड. मगर आप, अगर आपको वो देखते हैं कि ये तो है कर रही है और कपड़ों में ही लगी हुई है, व्हाट विल दे हैव इन यू? आपकी बातों से कन्विंस नहीं होंगे, आपके एक्शन से कन्विंस होंगे, आपके कॉन्फिडेंस से कन्विंस होंगे, आपके मार्क्स से कन्विंस होंगे. कन्विंस करिए, कुछ बनिए और कहिए कि जिस दिन मुझे ऐसा लड़का मिलेगा जो मेरा पार्टनर बनने को तैयार है. आई एम नॉट लुकिंग फॉर पति. पति का मतलब मालिक, लखपति, लाख का मालिक. मुझे पति नहीं चाहिए, और मैं कोई चीज नहीं हूं कि मेरा कन्यादान हो सकता है. साथी बनने लायक मिलेगा मैं शादी करूंगी, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगी. ये कब कह सकती हो तुम? जब कुछ कमाने लायक बन जाओ. बात करने लायक बनना तो बहुत आसान है रिद्धि रघुवंशी. And that's what you have to do. This is the time for you to do this, to do this. And I can tell you, if your parents have agreed to send you to a college like Gargi, if you do something brilliant, they will not only accept you, they will appreciate, they'll go by it. Do it rather than keep blaming others. And I think each one of you in this college, आपकी तो लॉटरी निकल चुकी है यार. हमसे पूछो जिन्होंने आपके जैसे कॉलेज देखे तक नहीं है. आपकी बिल्डिंग, आपके हॉल्स जो मतलब सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, और आप लोग यहाँ निकल के और बात कर रही हैं बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग. अरे शर्म करो यार. फार्मर्स प्रोटेस्टों में जाओ, कुछ करो, देश को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ. हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सोचो, भारत माता के ऊपर सोचो. या बॉडी शेमिंग पर बैठ के 2 घंटे बात कर रहे हैं. ऐसी कौन सी आपकी बॉडीज है जिसमें 4 चांद लगे हुए हैं? अभी कोविड होगा, मर जाएगी ये ब्लडी बॉडी. बातें क्या कर रहे हैं हम लोग? बॉडी 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 बॉडी. कुछ करके दिखाओ. जाके सीखो उन फार्मर से. बैठे हुए हैं 4 महीने हो गए बेचारे उनको बैठे वहां पर. 10 रुपए दिए उसके लिए. आप सुनिए, यू डोंट हैव टू आंसर दीदी. नाउ लिसन. आप देखिए आपके यहाँ पर जब म्यूजिक बजता है, जब आपके यहाँ हजारों रुपए आके खर्च होते हैं आपकी एक पार्टी में, मैं यहाँ बैठ के देखती रहती हूँ. मैं कहा ये है इनका म्यूजिक, और ये है इनकी पार्टी, और ये है इनकी कल्चर. What do I, and what kind of songs come out of your campus which I listen to? So I think you need to know that you are amongst the most privileged. And I think it's a waste of time to be talking about bloody body language, whereas we should be talking about how we are going to bring democracy and bring people's rights and all that. That's what we should be talking about. Thank you very much, Riddhi Raghuvanshi. Now, next we have Manan. Manan, please switch on your camera if possible while asking the question. Manan. मनन तो मगन हो गए अपने आप में. Kratika, you can go. Pratika. Kratika. Kinchi. Hello. Yes, ma'am. Hello. Kratika. Hello. Good morning. Good afternoon, Kratika. Ma'am, it was a great honor to listen to you and talk to you. Ma'am, I'll come straight away to the question. If we see from the very beginning, in a family, when a girl or a boy is born, from the very beginning,
start differentiating, we start discriminating that this is a boy and this is a girl. These are things which girls should do. These are things which boys should do. And a great role is played by women in that. And if we talk about patriarchy, and we just say that we have to fight with the mindset of men, then it should be a totally wrong concept, because women also play a major role in boosting up the concept of patriarchy. So, ma'am, what should we do to fight this insidious enemy of patriarchy? Thank you, Kratika. An excellent question. We don't say that we have to fight mindset of men. We don't say that. We say we have to fight the patriarchal mindset. We don't say we have to fight the mindset of men. गांधी जी भी मैन थे, बाबा साहब अंबेडकर भी मैन थे, बुद्धा जी भी मैन थे. So it's not the man or a woman whose mindset we have to fight. We have to fight a patriarchal mindset. और जैसा तुमने बिल्कुल सही कहा कृतिका, औरतें भी पेट्रियार्कल होती हैं, मर्द भी पेट्रियार्कल होते हैं. औरतें भी फेमिनिस्ट होती हैं, मर्द भी फेमिनिस्ट होते हैं. तो पेट्रियार्कल बॉडी डिसाइड नहीं करती, माइंडसेट डिसाइड करता है. और कई बार जैसा तुमने बिल्कुल सही कहा, औरत ज्यादा पेट्रियार्कल होती है. एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट. औरत कम पढ़ी लिखी होती है, कम एक्सपोजर होता है, कम फ्री होती है टू चैलेंज पेट्रियार्की. एंड एज यू सेड सो ब्यूटिफुली, पेट्रियार्की इतनी चालाक है कि वो औरत को जिम्मेदारी देती है बच्चों को पेट्रियार्की सिखाने की. जेंडर सिखाने का मतलब होता है पेट्रियार्की सिखाना, फेमिनिन और मैस्कुलिन बनाना. दैट इज व्हाट इज द क्लेवरनेस ऑफ पेट्रियार्की. तो तुमने अच्छा किया ये सवाल पूछा, क्योंकि ये गलत फहमी बहुत लोगों को है. The word patriarchy means a social system in which men are considered to be superior. ये thinking है. And in which men are given more control over resources, decision making and ideology. ये क्या है? ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को मानने वाले औरतें और आदमी सब हैं जो इस सिस्टम में पैदा हुए. तो women have a patriarchal mindset. सासू जी, लड़के की माँ. एक ही औरत दो तरह की सास होती है. वो लड़की की माँ भी होती है, तब वो झुकती है. जब वो लड़के की माँ होती है, तब वो अकड़ती है, हेकड़ी मारती है. So patriarchy is a mindset. Both women and men can be patriarchal, are patriarchal. Feminism is against patriarchy, not against men. We are against women also who are patriarchal. We are against ourselves also when we become patriarchal. So we never say कि पेट्रियार्की से लड़ने का मतलब है मर्दों से लड़ना. ये गलत फहमी है, और हमने कभी नहीं कहा. ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसरिप्रेजेंटेशन है. पेट्रियार्की गाने में है तो लड़ना है, पेट्रियार्की नेशनलिज्म में है तो लड़ना है, पेट्रियार्की किसी भी चीज में है तो लड़ना है. मर्द में है तो लड़ना है, औरत में है तो लड़ना है, ट्रांस में है तो लड़ना. Thank you, Kratika. Ma'am, now we have Kiran Goswami. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, first of all, thank you so much for today. And ma'am, first thing, I want to be a feminist writer. So I write poems for women, about women.
Wow. And I have a best friend. So I am pretty thin. I was body shamed. I still am, but now I don't care about it. I've stopped listening to people now. I was body shamed to such an extent that I started hating myself. And I think that's a very, very wrong feeling to hate yourself, because then you have nowhere to go. Right. And my best friend, she's extremely fat. I wouldn't use the word, but then she calls herself that way. So using the same words. And it's like she hates herself now to the extent I hated myself. So she isn't ready to accept herself. She went on an extreme diet. She avoided eating in school. Like, she avoided everything she could. And I felt so sad, because I cannot make someone love themselves. But then, as a woman, as her best friend, and as a human, I was like, what do I do for you? She is still going through that phase, and I feel so sad every day. We talk, and she'll anyway bring up the topic of she hating herself, and I feel so speechless, so helpless, that how do I help you? So, ma'am, how do I help people this way? By loving them more, by continuously talking to them. Don't think कि अब मैंने उसको 3 बार कह दिया I love her, चौथी बार कहो, 5वीं बार कहो, 6ठी बार कहो, मोहब्बत करो, उसको कहो, किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट करे. इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है किरण. उससे बात करो, बात करो, बात करो, और कहो कि दूसरों की नजर से वो खुद को न देखे. और अगर उसका मोटापा खाने की वजह से है, बिना एक्सरसाइज की वजह से है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी गलतियों से होती हैं. कुछ लड़कियां जिनको बुलिमिया बीमारी होती है, जो बिल्कुल खाती नहीं है बिकॉज दे थिंक बीइंग थिन इज प्रिटी. आई थिंक वन नीड्स टू टॉक टू देम, वन नीड्स टू टेल देम कि ऐसा कौन सा प्रिटीनेस है साला जो आपको मार दे. और अगर किसी और वजह से उनका मोटापा है तो एक्सेप्ट करना है. लेकिन अगर अपने खाने की वजह से, बैड ईटिंग की वजह से, जंक फूड की वजह से है, तो उससे लड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है. और किरण, तुम एक कविता तो सुना दो अपनी. मैंने तुमको अपनी 2 सुनाई थी, तुम मुझे एक सुना दो जो याद है तुम्हें. कम ऑन. और अगर तस्वीर श्योर मैम, श्योर. अपनी फोटो पे दिखा दो ना किरण. श्योर मैम. हाँ, सुना दो जो तुम्हें याद है. Ma'am, actually, my poems are extremely long sometimes. So generally, when I write about women, they tend to be very long. I think वो personal emotions शायद कहीं आ जाते हैं, तो वो बहुत लंबी हो जाती हैं वो poems कहीं ना कहीं. उसका एक टुकड़ा सुना दो. Sure, ma'am, sure. May I take 1 minute then? Can I think which poem should I choose? All right. So Alvia, we can take another question while Kiran gets ready. Ma'am, I can read out Manan's question. She's a 3rd year BA program student, and she wanted to ask that we have identified the problems and we know the problems, but what can be the solution to these problems? Manan, I'm surprised that you are saying we have known the problem. I didn't even describe the problem from the beginning. मैंने define नहीं किया. I could have spent half an hour telling you body shaming किस तरह की होती है. मैंने तो शुरू से आते ही कहा ये बकवास है. And what have I said? I have said patriarchy problem है, body shaming problem नहीं है. patriarchy से बचें. Body को importance देना problem है. Importance of the wrong kind. Body को importance देनी है. योगा के लिए, साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए देनी है. बनाना है अपना जिस्म. मसल्स मुझे भी चाहिए. आज भी मैं देखती हूँ 75 में, देखो मेरी मसल्स हैं कि नहीं. ये देखो, ये है ना मसल्स. देना है बॉडी को इंपॉर्टेंस. तो आई थिंक मैंने तो पूरे टाइम बोला है कि प्रॉब्लम है ही नहीं. और प्रॉब्लम अगर कोई है तो पेट्रियार्की है, कंज्यूमरिज्म है, कैपिटलिज्म है. उससे डील करो. So we have only talked today about how to deal with these problems, how to deal with ourselves. Body से गलत attention हटाओ. Attention दो
वैल्यूज पर अटेंशन दो, प्यार पर। और देखो, हैव यू एवर सीन अ स्माइलिंग फेस व्हिच इज नॉट ब्यूटीफुल? हैव यू सीन अ लविंग पर्सन हु डजंट लुक ब्यूटीफुल टू यू? तो मनन, आई एम रियली सरप्राइज्ड यार कि तुमने, you thought we were only talking about problems. I mean, Ma'am, she is asking how to deal with patriarchy. हाँ, उसके लिए प्लीज आप अलविया को बोलो मुझे दोबारा बुलाए, और अब के मैं आपके वहां आऊंगी, चाय भी पीऊंगी, समोसे भी खाऊंगी। तो पेट्रियार्की, हाँ, पेट्रियार्की को समझाने में तो भैया समोसा लगेगा, बिना समोसे के मैं नहीं करूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल yes. समोसा लगेगा। All right, Kiran Goswami is ready. Come on, Kiran. Fast. Yes, ma'am. So, ma'am, this poem, because we are talking about body shaming. But my God, you are so loving. My God. तुम क्या? Thank you, ma'am. अरे इतनी देर से पर्दे में बैठी थी तुम, क्या? देखो तो, wow, what a smile. Thank you, ma'am. Lovely. Come on. So, ma'am, this poem is something I've written for, not for myself, but about myself. So it's about my weight only. So it goes like, they ask me a question every day. They ask me, darling, how much do you weigh? And I answer this question every day. I wish to tell them, I am not made up of flesh and bones. I do not weigh on scales and stones. I weigh the love letters never sent. I weigh my heart I gave on rent. I weigh all my insecurities. I weigh Ganga's purities. I weigh the prayers of my mother. I weigh the eyes of my father. I weigh the 32-inch smile I carry and flaunt every day. I weigh the bedtime fears which haunt me every day. I weigh the love letters I have for her and him. And I am certain they weigh more than the stories I dream. I weigh the kindness I have fed. I weigh the fairy tales I have read. I weigh my hope and I weigh my dreams. I weigh my faith and I weigh my screams. So I weigh the lightest I could ever be and the heaviest you could ever imagine being. But then in the end, I murmur the words 47 kilograms. A lean and skinny girl is who I am. Go, what a woman! Yes! Thank you, ma'am. My God, Kiran, you kudos, are kudos for you. Kudos for you. Yes. Wonderful. क्या बात है? क्या बात है यार? Please keep writing. Thank you, and ma'am. Friends, to the last question, Manan's question, how do we fight patriarchy? I would suggest, please join campaigns going on. We have a campaign, 1 billion rising against all kinds of violence. Your college has been the one from where I have not been able to find anyone. मतलब इतने घटिया कॉलेज हो ना आप, मेरे पड़ोसी हो, कितनी बार मैं वहां आके बोल चुकी हूँ, मगर आपके यहाँ से क्या मजाल है, कोई हमारे साथ जुड़े। है करते रहते हैं 2-3 लोग, आते नहीं हैं। You have to join campaigns which are going on. 1 billion rising में आजकल 2 लड़कियां, औरतें, 21 and 24. You know what they're doing? They are on a cycle trip. They are cycling 5,800 kilometers in 85 days. 2 girls. एक है उत्तराखंड की, बीए करा उसने, 21. एक मछुआरों की बेटी है, बिहार की, पिताजी मछुआरे हैं, मच्छी पकड़ते और बेचते हैं कलकत्ते में. Every night they are in some other village, town, sleeping God knows where, and we are sponsoring them, 1 billion rising, and they are peddling for safety, ताकि आप मेम साहब लोग बॉडी शेमिंग की बात करती रहे और वो बॉडी शेमिंग से निकलकर 5,800 किलोमीटर चला रही है. तो अगर पेट्रियार्की से बचना है तो कुछ करना पड़ेगा, वेबिनारों से निकलना पड़ेगा, सेमिनारों से निकलना पड़ेगा, दीवारों से निकलना पड़ेगा, पिंजरे तोड़ने पड़ेंगे, कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, इतनी सुंदर किरण की पोएम को छापना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, पोएम का क्लब बनाना पड़ेगा, आपके बगीचे में मुझे बुलाना पड़ेगा, समोसा खिलाना पड़ेगा, तब पेट्रियार्की जाएगी.
अब बिना समोसा खिलाए, और मेरे से कह रहे अपना बैंक अकाउंट दो, हम आपको पैसे भेजेंगे भाषण देने के। अरे मैं भाषण देने का पैसा नहीं लेती हूँ, मैं भाषण देने की जफ्फी लेती हूँ, जफ्फी। Yes, ma'am. Hugs to you. हाँ, मेरे को पूछ रहे हैं बताइए बैंक अकाउंट बताओ। अरे बैंक अकाउंट, जफ्फी अकाउंट बताऊंगी मैं। मैम जितना भी आप चाहें। यस, अभी तो वर्चुअली, बट जब मिलेंगे तब फिजिकली। यस मैम। बिल्कुल। ऑलराइट, अब मेरा पीछा छोड़ो। मैम एक लास्ट क्वेश्चन था, ये मुझे पूछना था। ओह जी। मैम मैंने अपने आसपास ये बहुत नोटिस किया है कि बोलना बहुत जरूरी है अगर कुछ आगे बढ़ना है, करना है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। बट मैंने अपने आसपास देखा है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बोलती ही नहीं है। उनको तो मैंने डायरेक्टली भी बोला है कि कुछ तो बोलो, हाँ ना, गलत है, सही है, कुछ भी, बट बोलता कोई नहीं है। तो अपने आसपास लोगों को बोलने के लिए कैसे इनकरेज करे? काम तो बाद में आएगा, पहले कुछ बोले तो कोई। तुम बोलो, तुम हिम्मत दो, ग्रुप्स तैयार करो, जिनको पूरी उम्र खामोश रखा गया है, जिनके मुंह बंद कर दिए गए हैं, वो अलविया के या कमला के एक बात कहने से नहीं बोल पाएंगे। तुम अपने प्यार से, अपनी सपोर्ट से, अपने एनकरेजमेंट से दो ना जगह उनको, वो बोलेंगी जब हम ग्रुप्स बनाएंगे। अब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कई दफा सबसे अनफॉर्चुनेट चीज होती है कि हमारे घर के अंदर ही सबसे ज्यादा हमें चुप कराया जाता है, within the family. So what do we need? We need an alternative family. Alternative family of the Alvias, of the Kirans, of the Rekhas, of the Afreens, of the Anitas. जहां मुझे लगे ये तो मुझे समझते हैं, ये 10 लोग मेरे कॉलेज में मुझे समझते हैं, इनके सामने बोलूंगी और धीरे धीरे बोलूंगी। अब सवाल ये है कि आप लोग सभी, हम सभी तो बोलना कम कर रहे हैं। मेरे घर में मेरे नेफ्यूज एंड नीसेस आते हैं, एक हग दे के लेफ्ट हैंड से मुझे, फिर वो अपने फोन पे बैठ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ मेरे घर आके क्या तुम मेरे को टाइम वेस्ट कर रहे हो? गो बैक, फोन पे ही बैठना है ना तुमने, तो मेरे घर आके फोन पे क्यों बैठे हो? फेसबुक ही देखनी है तो फिर मेरा फेस क्यों देख रहे हो? ना बैठ के फेसबुक देखो ना। So Alvia, to some extent we are all getting completely into the phones, and I think the only thing is to start small groups. अब ऐसी खूबसूरत पोएम जो किरण ने सुनाई है, मतलब किरण की पोएम के सामने मेरी पोएम इतनी घटिया थी। Start, my God, you can have 10 clubs in your college for these beautiful poets. हिंदी में पोएट्री हो, उर्दू में पोएट्री हो, बांग्ला में पोएट्री हो, करो, बातें करो, फोन घर छोड़ के आओ, एंड गो ऑन लुकिंग। तुम लोग बात ही नहीं कर रहे हो किसी से आजकल, तुम तो फोन में घुसे हो। जो दूर हैं उनसे बात कर रहे हो, जो पास हैं उनकी तरफ पीठ है तुम्हारी। सोचो तो सही, तुम हम हो क्या रहे हैं? Bloody zombies. Alvia, tell me about yourself. Who are you? I like you. Ma'am, I think before I learned to define myself as anybody, I think I'm a person. I've always, we have had feminism in our last semester and we discussed things. And I've often been asked, why don't you define yourself as a feminist? So I think that to define yourself as a feminist, it is important to realize that there is a responsibility when you call yourself something. And I want to make sure that before I take on that responsibility, I need to be, aware of all the things, at least the things that I can know, and maybe then I can define myself more properly. Wow. Right now, I just want to be a nobody where everybody wants to be a somebody. Beautiful. तो तुम मतलब क्या पढ़ रही हो? I'm philosophy. हाँ, वो तो दिख रहा है तुम्हारी बात से ही। किस साल में हो? Third year. Third year. I agree with you, but I tell you, फेमिनिज्म का ये नहीं है कि हम परफेक्ट फेमिनिस्ट हैं। Feminist, I know, let me just finish.
फेमिनिस्ट होने का मतलब है कि मैं इस रास्ते पे चलना चाहती हूँ, मैंने अभी चलना शुरू किया है, मैं सीख रही हूँ। अगर तुम अपने आप को फेमिनिस्ट कहोगी तो हो सकता है मैं जो फेमिनिज्म को थोड़ा सा जानना चाहती हूँ तुम्हारे पास आ जाऊं, तुमसे सीखना शुरू कर दूं और फिर हम दोनों उस रास्ते पर निकल चलें। एंड जहां तक ये है दैट आई शुड रियली नो everything in feminism, I don't think anybody can know everything in feminism. It's not possible because feminism is not a topic. Gender is not a topic. It is a perspective on everything. Feminist perspective on philosophy, on psychology, on technology, on war, on nationalism. Feminism is a way of looking at the world. And the day we start looking from your personality itself, from the way you look, one can say that you have been on this journey for a long time already. And feminism can only be a journey. मैंने आज तक एक परफेक्ट फेमिनिस्ट को नहीं देखा। मेरे शीशे में भी मुझे परफेक्ट फेमिनिस्ट नहीं दिखती, इम्परफेक्ट फेमिनिस्ट दिखती है जो रोज गलती करती है, क्योंकि पेट्रियार्की हमारे जिस्म में, हमारे दिमाग में, हमारे धर्म में, हमारी कल्चर में, इससे छूटेंगे कभी नहीं। मगर फेमिनिस्ट कहने का मतलब है मैं छूटना चाहती हूं। इसका मतलब नहीं है मैं छूट चुकी हूं। अगर छूट चुकी होता अलविया तो एक भी फेमिनिस्ट नहीं होती दुनिया में। इट्स अ जर्नी। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को मंजिल मिलेगी, तो इसलिए मैं ये शेर सुनाती हूं कि मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। कम से कम 2-4 लोग मेरे साथ तो हैं, कारवां तो है, और ये बड़ा होता जा रहा है और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं नहीं कहूंगी कि मैं फेमिनिस्ट हूं तो ये कारवां बनना भी शुरू नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहना शुरू कर दो अलविया। थैंक यू। मैं कुछ कह सकती हूँ? आप कौन है मुझे बताइए? वीना शर्मा। अभिवाद अपना चेहरा दिखाइए। हमें क्यों दिखाइए? या हमें मुंह दिखाई दीजिए। एक्चुअली कमला मैम, मुझे अलविया की बात का थोड़ा सा अगर मैं जवाब दे पाऊं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी ही कमजोरी है कि जो जिनके बारे में अलविया की चिंता है कि वो बात नहीं करती है लड़कियां, दरअसल हम अपने शेल में रहते हैं। हम सामने से उनको खोलने की कोशिश ही नहीं करते। मेरे पास हजारों ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं बसेस के, मेट्रो के, जहां लड़कियां सिमटी हुई सी बैठी रहती हैं, उनके पास बैठी लड़की रो रही होती है, मजाल है वो उसको पूछ ले कि तुम्हें हुआ क्या है। I agree with you, Veena. Good afternoon, Kamla ji. This is Purnima Agarwal. जी पूर्णिमा, नमस्ते। I want to, I think we are towards the end only. We want to wind up the meeting. I just want to say one thing, as Veena ji said, that we need to come out of our comfort zones. We keep talking about patriarchy. We keep talking against patriarchy. But actually, I don't think that we come out of our comfort zone and try to do or say something. As we say that the best education of the child starts from the family, from the scratch. So I think the barest minimum steps which we can take for, against patriarchy are within our surroundings themselves. Then we can, every step becomes important. Every simple effort becomes important, and we should start doing that just by coming out of our comfort zones. Completely, Veena. I agree. मगर अगर family really बहुत ही rigid है, then never mind. Go start talking outside. Talk to people. जिस दिन तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, एक बड़ा बन जाएगा, तुम्हें argue करना आ जाएगा. Don't get stuck. Because sometimes for many of us, the family is the most difficult place to talk. Yes, ma'am. So, वो बदले तो बहुत अच्छा, कोशिश कर। Yes, yes.
और हम कैसे बदले हैं? हमको भी तो हाँ हमें भी तो सालों लगे हैं। जी मैम। मुझे 50 साल लग सकते हैं तो मेरे पिताजी को तो और ज्यादा लग सकता है, बिकॉज वो कब पैदा हुए थे, किस माहौल में वो बड़े थे। फिर भी तुम्हें गार्गी भेजा है, अब इससे अच्छा पिता कहां से मिलेगा जो तुम्हें गार्गी। So let us appreciate what they have done for us and let us keep talking to them. Don't give up on it. Every human being can learn. Thank you. Thank you, ma'am. I think Alvia, Yes, ma'am. is there any other question left? No, In ma'am. Winder? So yeah, so thank you so much, Kamla ji, for giving us an insight into unlearning and relearning, because that is the only thing that we can do as human beings in the first place. And जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म करो तभी तो आगे बढ़ोगे, तो कर्म करना है with the value. That value is not the physical sense of body, but the spiritual and the moral sense of body, the holistic sense of body, and holistic sense of everything. I mean, political economy के चंगुल में हम हैं आज की डेट में, but निकलना भी हमें ही है, and हम सबको ही निकलना है, whether it's a physical body of a man or a woman or a trans, हम सबको challenges को overcome करना है, and the biggest challenge is patriarchy in itself, which is the oppressor, be it in the political economy sense, be it in the male masculine sense, be it in any sense. Challenges have to be overcome, और वो तभी होगा जब हम एक holistic perspective रखेंगे, जैसा कि आपने हमें बताया. मेकअप का सही मीनिंग, फिजिकल बॉडी का सही मीनिंग, पेट्रियार्की का सही मीनिंग. सो मीनिंग्स जो हमें अभी तक गलत मीनिंग्स बताए गए हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि ज्यादातर आज की जनरेशन का इतना नहीं, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, reverse chauvinism was the thing that we were trying to look at or aspire for. पर आज हमने ये समझ लिया है कि it's the chauvinism that has to be challenged and not any physical male or female. Maleness of rationality of maleness, जो एक जिनी विलॉइड का आर्टिकल है, उसको चैलेंज ना करके rationality of humans, we need to just get back to that. We are human beings, we have the power to reason, and we need to value whatever we have been given. So yes, I agree with you that body has to be looked after for health reasons. Absolutely. For my holistic wellness, but not necessarily that physical decorativeness, क्योंकि decorate अगर हम decoration को देखेंगे तो obviously हम अपने आप को objectify ही कर रहे हैं. So thank you so much for again telling us to relearn and unlearn. That is what is important. It's always a delight to hear you, and let's really hope, and all of us are looking forward to that physical interaction. Pandemic ने ये तो सिखा दिया कि हम जितना मोबाइल पे बैठते थे, स्पेशली आज की जनरेशन को, कि वो जो मोबाइल पे बैठे रहते थे सारा टाइम स्क्रीन टाइम करते रहते थे, एंड फिजिकल कनेक्टिविटी को डिराइड करते थे. आज सारे बच्चे भी यही चाह रहे हैं कि लेट्स मीट अप फिजिकली, लेट्स हग ईच अदर फिजिकली. So waiting for that time, and soon we'll have you and Jappi. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for inviting me. Bye-bye. Thank you, ma'am. We ask us to end the meeting. Yes, ma'am. I think everybody is leaving. Thank you, Anuj sir, for the technical support and everything.